माननीय भारतर प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी डांगरिया, मुख्यमंत्री सम्मानीय हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया, आमार मंत्रीসকল यथाक्रमे आमार पीजित हाजरिका डांगरिया, केशव महंत डांगरिया और आमार अतुल बरा डांगरिया और आमार सभापति दयानंद पाठक डांगरिया, जय जयते मैं आपनालोक आटाइरे ओसरत करजरे मैं मोर कृतज्ञता जनाइछो। जे आज এই গৰমতো আপোনালোকে অগ্ৰদূতৰ মৰম এৰিব নোৱাৰি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, তাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এই অনুষ্ঠানটো আৰু পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে যথেষ্ট পৰিমাণে ইয়াতে লাগি ভাগি দিয়াৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটো এনেকৈ সফল হৈছে। আৰু আজি এটা এই যেটো আমাৰ গৌৰৱ বুলি যদি কওঁ, তেনেহ'লে এই গৌৰৱ মই অসমৰ আটাইবোৰ সাংবাদিকৰ সৈতে ভাগ কৰি উপভোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াত উপস্থিত থকাখিনি অকল নহয়, একেবাৰে অৰুণোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, দণ্ডীনাথ কলিতা, দীননাথ শৰ্মা, হৰেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা, কনক শৰ্মা প্ৰমুখ্যে যিসকলৰ চেষ্টাত আজি অসমৰ সাংবাদিকতাই এইখিনি পাইছে, সেই সকলোৰে ওচৰত এই আজিৰ এই উৎসৱটো মই নিবেদন কৰিছোঁ। সকলোৰে মানে যাতে স্মৃতিত এইটো থাকে তাৰে কাৰণে। এতিয়া মই এইখিনি ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ আটাইখিনি বাতৰি কাকত, আটাইখিনি ইলেক্ট্ৰিক মিডিয়াৰ মানুহে আমাৰ সহযোগী, আমাৰ বন্ধু, আমাৰ কোনো অগ্ৰদূতৰ কোনো প্ৰতিযোগিতা নাই। 1971 আমি কাগজ ছপাইছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা কাৰো লগত আমাৰ বিৰোধ নাই। আমি সকলোকে সহযোগী বুলি ভাবোঁ, সকলোকে বন্ধু বুলি ভাবোঁ, সকলোকে বান্ধৱী বুলি ভাবোঁ। আৰু আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব যে এই কাকতখন 1971 পৰা আজি 2022 পালেহি, কিন্তু কোনো মূলধন নোহোৱাকৈ। একমাত্ৰ আমাৰ আশীৰ্বাদ, আমাৰ লেখক লেখিকা আৰু পঢ়ুৱৈ, আচৰিত হ'ব লগা কথা, লেখক লেখিকা আৰু পঢ়ুৱৈ সমাজৰ আশীৰ্বাদত এনেকৈ মূলধন নোহোৱাকৈ কাগজ এখন অসমতকৈ বেলেগ ভাৰতবৰ্ষত মই চলিছে বুলি মই নাজানো। আমাৰ কাৰণ বহুতো কাগজ ইতিমধ্যে আমাৰ মূলধনৰ অভাৱত বন্ধ হোৱা দেখিছোঁ, কিন্তু আমাৰ কোনো মূলধন নাই। মোৰ দেউতাৰ টকা পইচা আছিল, কিন্তু নিদিয়ে। এই বাতৰি কাকত চলোৱা টান কাম, ৰাধা গোবিন্দপুৰৰ বাহিৰে কোনো পাৰা নাই। নালাগে তই বেলেগ কৰ, বেলেগ চাকৰি কৰ, যি ইচ্ছা তাকে কৰ, কিন্তু মই বাতৰি কাকতৰ কাৰণে পইচা দিব নোৱাৰোঁ। ঘৰে এক পইচাও নিদিলে মোক। যিয়ে নহওক, কিন্তু কাকত এখন উলিয়ালে বাঘৰ পিঠিত উঠাৰ দৰে হয়, নামিব নোৱাৰি, গতিকে চলাই থাকিব লগা হ'ল। আৰু চলালোঁ কেনেকৈ? এই যে আমাৰ গ্ৰাহকসকলৰ পইচাৰে চলালোঁ, আমাৰ লেখকসকলৰ লেখা ছপালোঁ, আৰু তেনেকৈ আজি 52 বছৰ আমি অতিক্ৰম কৰিলোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে এই পবিত্ৰ ক্ষণত মই আটাইলৈকে মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। 2 নম্বৰ অগ্ৰদূত এই অসমৰ অৰ্ধ শতাব্দীৰ দাপোন, মই দাপোন বুলি কৈছোঁ। কাকতখন আৰম্ভ হ'ল মঙলদৈত 1971। তাতে গণ্ডগোলটো আৰম্ভ হ'ল ভাষা আন্দোলন লৈ বিশ্ববিদ্যালয় 1972। আমি কাভাৰ কৰিলোঁ কেৱল
মানে খাৰুপেটীয়াত অগ্নি জ্বলিল আৰু সেইটো জানিবৰ কাৰণে আন কোনো কাকতে তেনেকৈ এইটো কাভাৰ কৰা নাছিল আৰু তেতিয়া সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে বিচাৰিলে যে অগ্ৰদূতখন পঢ়িব লাগে তাৰ পাছতে যেতিয়া আমি মঙলদৈৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ চাৰ্কুলেশ্যন বাঢ়ি গ'ল প্ৰথম ছপাইছিলোঁ মাত্ৰ 1000 তাৰপিছত 4000 যেতিয়া হ'ল দেখিলোঁ যে নহয় অসমৰ আন মানুহকো কাগজখন দিব লাগে আমি তাৰ পৰা আমি গুচি আহিলোঁ গুৱাহাটীলৈকে মালিগাঁও আহি পেলাই তেতিয়া আমি মানে লাহে লাহে আমাৰ মানে বাঢ়ি গ'ল আৰু পৰিসৰটো মূলধন নোহোৱাকৈ বাঢ়ি গ'ল একমাত্ৰ আমাৰ পঢ়ুৱৈ সমাজ আমি যিখিনি পইচা পাওঁ তাৰপিছত আমাৰ লেখকসকলে ভালকৈ লিখে চালেউদ্দিন চৌধুৰী ডাঙৰীয়া তেওঁতো আমাৰ সহকাৰী সম্পাদক আছিল তেওঁ ৰীণা ডেকাৰ কাহিনী আৰম্ভ কৰি দিলে মানে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত যিমান দুৰ্ঘটনা হৈছিল সেইবিলাক ধাৰাবাহিকভাৱে যেতিয়া আমি চপোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ কাগজখন মানে মানুহে গ্ৰহণ কৰিলে আন কাকতে সেইটো চপোৱা নাছিল তাৰ পাছতে যেতিয়া বিদেশী বিতৰণ আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া আমি আন্দোলনৰ ন্যায্যতাটো আমি মানি লৈছোঁ আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ চেলু লৈ পেলাই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন মানে যে আলফাৰ সৃষ্টি হ'ব এইটো আমি সমৰ্থন নকৰোঁ আমি একমাত্ৰ মানে দৃঢ়তাৰে যে মানে অসম ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ তাৰ কোনো বিকল্প হ'ব নোৱাৰে অসম অংগৰাজ্য নহয় অসমৰ পৰা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে অসমৰ পৰা সাহিত্য একাডেমী নেহেৰুৰ পিছতে প্ৰথম সভাপতি ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য সংগীত নাটক একাডেমীৰ সভাপতি হৈছে ভাৰত ৰত্ন পাইছে কি পোৱা নাই আৰু গতিকে আমাৰ গোটেই কথাটো হ'ল যে আমি মানে আলফাৰ বিৰুদ্ধে থাকিলোঁ আৰু আমাক আচৰিত কথা যে তেতিয়া আমাৰ চিপাহী থাকে 21জন 3টা মেটেল ডিটেক্টৰ 4জন মোৰ PSC 1990ৰ পৰা আৰু মই তেতিয়া মোক মানে এটা মাদাৰ টেৰেছাই দিল্লীত এটা হেৰি দিলে মানে নেশ্যনেল চিটিজেনশ্বিপ এৱাৰ্ড 1993 সেই সময়তে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই সেইটো পাইছে আৰু 1996 আকৌ মোক মানে ৰাম মনোহৰ লোহিয়া বঁটা দিলে গতিকে মোৰ সময় খুব তাকৰ আপোনালোকে জানিছেই গতিকে শেষত এটা বাক্যৰে মই সামৰণি মাৰিছোঁ জৰ্জ বাৰ্নাৰ্ড 96 বছৰতে লিখি আছে তেওঁ সুধিলে যে আপোনাৰতো ল'ৰা ছোৱালী নাই কি লিখি আছে আপুনি বোলে নতুন পুৰুষৰ কাৰণে মই লিখি আছোঁ মোৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে গতিকে কনকশ্যন দেখায়ো ক'ব খোজে যে মই যিখিনি লিখি আছোঁ নতুন পুৰুষৰ কাৰণে অসমক স্বাৱলম্বী কৰিব লাগিব অৰ্থনৈতিকভাৱে অসমক সাংস্কৃতিকভাৱে আমাৰ সংস্কৃতি অসমৰ অটুট ৰাখিব লাগিব তাৰে কাৰণে মই অবিৰতভাৱে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে কলম চলাই যাম এইখিনিয়ে ক'লোঁ মোক মোৰ সময় মাত্ৰ 5 মিনিট গতিকে আৰু মই আটাইলৈকে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু বিশেষকৈ তথ্য সংযোগ বিভাগৰ সঞ্চালক ডাঙৰীয়া কমিশ্যনাৰ ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া এইসকলক আকৌ মই একবাৰ ধন্যবাদ জনাই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত যদি সদায় থাকে কামনা কৰি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আকৌ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আকৌ ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মহোদয় এতিয়া মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ परम आदरणीय भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज आमार मजत उपस्थित अग्रदूत कागजर मुख्य सम्पादक आमार सकलोरे आदर्श और प्रेरणार प्रतीक कनकसेन डेका डांगरिया अग्रदूतर सोणाली जयंती उद्यापन समितिर सभापति दयानंद पाठक डांगरिया
মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সতীৰ্থ অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু সুধীবৃন্দ। असम के संवाद जगत के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। राज्य के एक विशिष्ट समाचार पत्र अग्रदूत ने अपनी प्रतिष्ठा के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं अग्रदूत समाचार पत्र से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। इस गौरवशाली क्षण में आज हमारा बीच भारत की परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में हमारा साथ मौजूद है। मैं उनकी उदारता के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ। 1971 सनत मंगलदৈৰ পৰা प्रकाशित 3-দিনীয়া অগ্ৰদূত পিছলৈ গুৱাহাটীৰ মালিগাঁও আৰু অৱশেষত দিছপুৰৰ পৰা প্ৰকাশ হৈ আহিছে। 1995 চনৰ পৰা অগ্ৰদূত দৈনিক কাকতলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিল। সংবাদ সেৱাকে জীৱনৰ ব্ৰড হিচাপে লৈ যোৱা 50 বছৰে শ্ৰী কনক সেন ডেকা ডাঙৰীয়াই আগবঢ়োৱা ঐকান্তিক অৰিহণাৰ বাবে আজি অগ্ৰদূত কাকতখন অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এক সম্পদ, এক জীয়ন্ত প্ৰবাহলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। অসমৰ বাতৰি কাকতৰ 150 বছৰীয়া গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাসত ভোটা তৰাৰ দৰে জিলিকি থকা এক উজ্জ্বল ৰত্ন হৈছে অগ্ৰদূত কাকতৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক প্ৰথিতযশা সাংবাদিক কনক সেন ডেকা ডাঙৰীয়া। 1933 চনৰ জুলাই মাহৰ 16 তাৰিখে নলবাৰী জিলাৰ বেলখৰৰ পৰা জন্মগ্ৰহণ কৰা ডেকাই শিক্ষকতাৰ কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলি মঙলদৈৰ পৰা 1971 চনতে পখেকীয়া অগ্ৰদূত প্ৰকাশ কৰি সাংবাদিকতাৰ মনোনিৱেশ কৰিছিল। চাইকেল চলাই তেখেতে অগ্ৰদূত বাতৰি কাকত প্ৰকাশৰ কাম কৰি তাক পাঠকৰ গ্ৰহণযোগ্য কৰি তুলিছিল। কনক সেন ডেকা ডাঙৰীয়া নিভাজ দেশপ্ৰেমিক, সাম্যবাদী চিন্তাধাৰাৰ অক্লান্ত সাংবাদিক। আপোচবিহীন সাংবাদিকতা তেখেতৰ ধৰ্ম। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब असम में अल्फा का एजिटेशन हुआ था, सारे हमारा असम का इंटेलेक्चुअल एक प्रकार मूक बन करके रखा था, या तो परोक्ष रूप से कोई सारे लोग अल्फा का समर्थन किया था। लेकिन वो समय में सारे डिसएडवांटेज सिक्योरिटी थ्रेट को भी ना करते हुए कनक सेन डेका जी ने अल्फा का इंडिपेंडेंट असम कॉन्सेप्ट का खिलाफ एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट असम में निर्माण किया था। उनके लिए उन्होंने कोई सारा पर्सनल सैक्रिफाइस करना पड़ा और एक प्रकार जो अल्फा का इंडिपेंडेंट असम का जो कॉन्सेप्ट नौजवानों का बीच में वो लोग थोड़ा सक्सेस भी हुआ था थोड़ा गैल्वेनाइज करने में, लेकिन उस समय कनक सेन डेका जी ने अपना पत्र में और पुस्तक लिखकर ये कॉन्सेप्ट को पूरा डिमोलिश किया और उन्होंने बोला कि असम भारत का अंग राज्य नहीं है, असम भारत का अभिन्न अंग है। ये एक कॉन्सेप्ट और ये एक हमारा जो एक राष्ट्रवाद का धारा कनक सेन डेका जी ने असम का नौजवान को दिया था और आज यही हम मंत्र मान के आगे चल रहा हूं और एक राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम का भावना असम में निर्माण भी हुआ है और उसको लेकर हम लोग बहुत ही गौरवान्वित भी है। कनक सेन डेका जी ने हमेशा बताता था कि बंदूक से नहीं, राइफल से नहीं, असम का लोग अगर आगे जाना है तो कर्म संस्कृति को लेके असम में एक इकोनॉमिक रीजनरेशन करके ही असम को आगे जाना पड़ेगा और यही रास्ता हमारा यंग जनरेशन को अपनाना पड़ेगा। एगराकी सांबादिकर जीवनলৈ भाबुकी আহিছিলে, বিভিন্ন সময়ত তেখেতে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল। এই গোটেইবিলাকক নেওচি তেখেত আগুৱাই গৈছিল। आज जब अग्रदूत समाचार पत्र का
50 साल पूरा हुआ है। मैं श्री कनक सेन डेका और पूरा अग्रदूत परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आगे का 50 साल भी अग्रदूत यही हिसाब से आगे बढ़ते रहे, इसके लिए भगवान को मैं प्रार्थना करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारे बीच में उपस्थित होके एक सच्चा देश प्रेमी को श्रद्धा देने के लिए जो आप उपस्थित हुआ, और एक इंस्टीट्यूशन अग्रदूत एक पेपर नहीं है, एक अखबार नहीं है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। आप आके अग्रदूत के लिए जो सम्मान दिया, इसलिए मैं सारा आसाम वासियों का ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कनक सेन डेका डांगरिया और अग्रदूत काकतर एक बर्णाढ्य जीवन और 50 बছৰলৈ অৱধাৰিতভাৱে চলি থাকক। অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ অগ্ৰদূতে অমূল্য অৱদানেৰে আমাৰ জাতীয় জীৱনক সদায় চহকী কৰি ৰাখক, তাকে কামনা কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आमी धन्यवाद ज्ञापन करिसु। अब मैं विनम्र आग्रह करती हूँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदय जी से कि वे आज के इस भव्य सभा को संबोधित करें और स्वर्ण जयंती वर्ष का कृपया शुभारंभ करें। असम के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिश्व शर्मा जी, मंत्री श्री अतुल बोहरा जी, केशव महंता जी, पीजूप हजारिका जी, गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर दयानंद पाठक जी, अग्रदूत के चीफ एडिटर और कलम के साथ इतने लंबे समय तक जिन्होंने तपस्या की है, साधना की है, ऐसे कनक सेन डेका जी, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों, असमिया भाषा में नॉर्थ ईस्ट की सशक्त आवाज दैनिक अग्रदूत से जुड़े सभी साथियों, पत्रकारों, कर्मचारियों और पाठकों को 50 वर्ष 5 दशक की इस स्वर्णिम यात्रा के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में अग्रदूत नई ऊंचाइयों को छुए। भाई प्रांजल और युवा टीम को मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। इस समारोह के लिए श्रीमंत शंकरदेव का कला क्षेत्र का चुनाव भी अपने आप में अद्भुत संयोग है। श्रीमंत शंकरदेव जी ने असमिया काव्य और रचनाओं के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त किया था। उन्हीं मूल्यों को दैनिक अग्रदूत ने भी अपनी पत्रकारिता से समृद्ध किया है। देश में सद्भाव की, एकता की, अलग को जलाए रखने में आपके अखबार ने पत्रकारिता के माध्यम से बड़ी भूमिका निभाई है। डेका जी के मार्गदर्शन में दैनिक अग्रदूत ने सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। इमरजेंसी के दौरान भी जब लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला हुआ, तब भी दैनिक अग्रदूत
और डेका जी ने पत्रकारीय मूल्यों से समझौता नहीं किया। उन्होंने न सिर्फ असम में भारतीयता से ओतप्रोत पत्रकारिता को सशक्त किया, बल्कि मूल्य आधारित पत्रकारिता के लिए एक नई पीढ़ी भी तैयार की। आजादी के 75वें वर्ष में दैनिक अग्रदूत का स्वर्ण जयंती समारोह सिर्फ एक पड़ाव पर पहुंचना नहीं है, बल्कि ये आजादी के अमृत काल में पत्रकारिता के लिए, राष्ट्रीय कर्तव्यों के लिए प्रेरणा भी है। साथियों, बीते कुछ दिनों से असम बाढ़ के रूप में बड़ी चुनौती और कठिनाइयों का सामना भी कर रहा है। असम के अनेक जिलों में सामान्य जीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। हेमंता जी और उनकी पूरी टीम राहत और बचाव के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। मेरा भी समय समय पर इसको लेकर वहां अनेक लोगों से बातचीत होती रहती है, मुख्यमंत्री जी से बातचीत होती रहती है। मैं आज असम के लोगों को, अग्रदूत के पाठकों को ये भरोसा दिलाता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उनकी मुश्किलें कम करने में जुटी हुई है। साथियों, भारत की परंपरा, संस्कृति, आजादी की लड़ाई और विकास यात्रा में भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता की भूमिका अग्रणी रही है। असम तो पत्रकारिता के मामले में बहुत जागरूक क्षेत्र रहा है। आज से करीब 150 वर्ष पहले ही असमिया में पत्रकारिता शुरू हो चुकी थी और जो समय के साथ समृद्ध होती रही। असम ने ऐसे अनेक पत्रकार, ऐसे अनेक संपादक देश को दिए हैं जिन्होंने भाषाई पत्रकारिता को नए आयाम दिए हैं। आज भी ये पत्रकारिता सामान्य जन को सरकार और सरोकार में से जोड़ने में बहुत बड़ी सेवा कर रही है। साथियों, दैनिक अग्रदूत के पिछले 50 वर्षों की यात्रा असम में हुए बदलाव की कहानी सुनाती है। जन आंदोलनों ने इस बदलाव को साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। जन आंदोलनों ने असम की सांस्कृतिक विरासत और असमिया गौरव की रक्षा की और अब जन भागीदारी की बदौलत असम विकास की नई गाथा लिख रहा है। साथियों, भारत के समाज में डेमोक्रेसी इसलिए निहित है क्योंकि इसमें विमर्श से, विचार से हर मतभेद को दूर करने का रास्ता है। जब संवाद होता है तब समाधान निकलता है। संवाद से ही संभावनाओं का विस्तार होता है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र में ज्ञान के प्रवाह के साथ ही सूचना का प्रवाह भी अविरल बहा और निरंतर बह रहा है। अग्रदूत भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। साथियों, आज की दुनिया में हम कहीं भी रहें, हमारी मातृभाषा में निकलने वाला अखबार हमें घर से जुड़े होने का एहसास कराता है। आप भी जानते हैं
कि असमिया भाषा में छपने वाला दैनिक अग्रदूत सप्ताह में 2 बार छपता था। वहां से शुरू हुआ इसका सफर, पहले दैनिक अखबार बनने तक पहुंचा और अब ये ई पेपर के रूप में ऑनलाइन भी मौजूद है। दुनिया के किसी भी कोने में रहकर भी आप असम की खबरों से जुड़े रह सकते हैं, असम से जुड़े रह सकते हैं। इस अखबार की विकास यात्रा में हमारे देश के बदलाव और डिजिटल विकास की झलक दिखती है। डिजिटल इंडिया आज लोकल कनेक्ट का मजबूत माध्यम बन चुका है। आज जो व्यक्ति ऑनलाइन अखबार पढ़ता है वो ऑनलाइन पेमेंट भी करना जानता है। दैनिक, अग्रदूत और हमारी मीडिया असम और देश के इस बदलाव का साक्षी रहा है। साथियों, आजादी के 75 वर्ष जब हम पूरा कर रहे हैं तब एक प्रश्न हमें जरूर पूछना चाहिए। इंटेलेक्चुअल स्पेस किसी विशेष भाषा को जानने वाले कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों रहनी चाहिए? ये सवाल सिर्फ इमोशन का नहीं है बल्कि साइंटिफिक लॉजिक का भी है। आप जरा सोचिए, बीती 3 औद्योगिक क्रांतियों में भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पीछे क्यों रहा? जबकि भारत के पास नॉलेज की, जानने समझने की, नया सोचने, नया करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमारी ये संपदा भारतीय भाषाओं में थी। गुलामी के लंबे कालखंड में भारतीय भाषाओं के विस्तार को रोका गया और आधुनिक ज्ञान विज्ञान रिसर्च को इक्का दुक्का भाषाओं तक सीमित कर दिया गया। भारत के बहुत बड़े वर्ग की उन भाषाओं तक, उस ज्ञान तक एक्सेस ही नहीं था। यानी इंटेलेक्ट का, एक्सपर्टाइज का दायरा निरंतर सिकुड़ता गया, जिसने इन्वेंशन और इनोवेशन का पूल भी लिमिटेड हो गया। 21वीं सदी में जब दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ रही है, तब भारत के पास दुनिया को लीड करने का बहुत बड़ा अवसर है। ये अवसर हमारी डेटा पावर के कारण है, डिजिटल इंक्लूजन के कारण है। कोई भी भारतीय बेस्ट इंफॉर्मेशन, बेस्ट नॉलेज, बेस्ट स्किल और बेस्ट अपॉर्चुनिटी से सिर्फ भाषा के कारण वंचित ना रहे, ये हमारा प्रयास है। इसलिए हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया। मातृभाषा में पढ़ाई करने वाले छात्र कल चाहे जिस प्रोफेशन में जाएं, उन्हें अपने क्षेत्र की जरूरतों और अपने लोगों की आकांक्षाओं की समझ रहेगी। इसके साथ ही अब हमारा प्रयास है कि भारतीय भाषाओं में दुनिया का बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध हो। इसके लिए नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन पर हम काम कर रहे हैं। प्रयास ये है कि इंटरनेट, जो कि नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा भंडार है, उसे हर भारतीय अपनी भाषा में प्रयोग कर सके। 2 दिन पहले ही इसके लिए भाषिनी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये भारतीय भाषाओं का
यूनिफाइड लैंग्वेज इंटरफेस है, हर भारतीय को इंटरनेट से आसानी से कनेक्ट करने का प्रयास है, ताकि वो जानकारी के, ज्ञान के इस आधुनिक स्रोत से, सरकार से, सरकारी सुविधाओं से आसानी से अपनी भाषा से जुड़ सके, संवाद कर सके। इंटरनेट को करोड़ों करोड़ भारतीयों को अपनी भाषा में उपलब्ध कराना सामाजिक और आर्थिक हर पहलू से महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात ये, एक भारत श्रेष्ठ भारत मजबूत करने, देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ने, घूमने फिरने और कल्चर को समझने में ये बहुत बड़ी मदद करेगा। साथियों, असम सहित पूरा नॉर्थ ईस्ट तो टूरिस्ट, कल्चर और बायोडायवर्सिटी के लिए लिहाज से बहुत समृद्ध है। फिर भी अभी तक ये पूरा क्षेत्र उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। असम के पास भाषा, गीत, संगीत के रूप में जो समृद्ध विरासत है, उसे देश और दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। पिछले 8 वर्षों से असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट को आधुनिक कनेक्टिविटी के हिसाब से जोड़ने का अभूतपूर्व प्रयास चल रहा है। इससे असम की, नॉर्थ ईस्ट की, भारत की ग्रोथ में भागीदारी लगातार बढ़ रही है। अब भाषाओं के लिहाज से भी ये क्षेत्र डिजिटली कनेक्ट होगा तो असम की संस्कृति, जनजातीय परंपरा और टूरिज्म को बहुत लाभ होगा। साथियों, इसलिए मेरा अग्रदूत जैसे देश के हर भाषाई पत्रकारिता करने वाले संस्थानों से विशेष निवेदन रहेगा कि डिजिटल इंडिया के ऐसे हर प्रयास से अपने पाठकों को जागरूक करें। भारत के टेक फ्यूचर को समृद्ध और सशक्त कराने के लिए सबका प्रयास चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियान में हमारे मीडिया ने जो सकारात्मक भूमिका निभाई है, उसकी पूरे देश और दुनिया में आज भी सराहना होती है। इसी तरह अमृत महोत्सव में देश के संकल्पों में भी आप भागीदार बनके इसको एक दिशा दीजिए, नई ऊर्जा दीजिए। असम में जल संरक्षण और उसके महत्व से आप भली भांति परिचित हैं। इसी दिशा में देश इस समय अमृत सरोवर अभियान को आगे बढ़ा रहा है। देश हर जिले में 75 अमृत सरोवरों के लिए काम कर रहा है। इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि अग्रदूत के माध्यम से असम का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा जो इससे जुड़ा नहीं होगा। सबका प्रयास नई गति दे सकता है। इसी तरह आजादी की लड़ाई में असम के स्थानीय लोगों का, हमारे आदिवासी समाज का इतना बड़ा योगदान रहा है। एक मीडिया संस्थान के रूप में इस गौरवशाली अतीत को जन जन तक पहुंचाने में आप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मुझे यकीन है अग्रदूत समाज के इन सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देने का अपना कर्तव्य जो पिछले 50 साल से निभा रहा है, आने वाले भी अनेक दशकों तक निभाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। असम के लोगों और असम की संस्कृति के विकास में वो लीडर के तौर पर काम करता रहेगा। वेल इन्फॉर्म, बेटर इन्फॉर्म सोसाइटी ही हम सभी का ध्येय हो। हम सभी मिलकर इसके लिए काम करें। इसी सदिच्छा के साथ एक बार फिर आपको स्वर्णिम सफर की बधाई और बेहतर भविष्य की अनेक अनेक शुभकामनाएं।